پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے حکومت کے نجکاری پروگرام سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر بھی موجود تھے۔ سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں وزیر اعظم کا سعودی عرب کی $2 ارب سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ کہا معاہدے سفر کا محض آغاز اور نئی پیش رفت ہیں۔ سرمایہ کاری میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائیں گے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کے تعاون کے بغیر IMF پروگرام ممکن نہیں تھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے یادداشت پر دستخط۔ ٹیکسٹائل، تعمیراتی شعبے، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں خیبر پختونخوا کابینہ کے مذاکراتی جرگے کے جمرود میں کالعدم تنظیم سے مذاکرات۔ وفد میں PTI سمیت نون لیگ کے MPA سمیت کمشنر پشاور، ضلعی انتظامیہ اور خیبر کے قومی مشیران شامل تھے۔ اس سے قبل پشاور میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں آل پارٹیز جرگہ ہوا۔ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو قومی جرگے سے بات چیت کا اختیار دے دیا۔ جرگے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، عام عوام ہو یا فورسز، سب کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب تک جو کارروائی ہوئی اس پر ریاست کی وجہ سے خاموش رہا، مزید کچھ ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، مذاکرات پر ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کالعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے۔ کوشش ہوگی کم سے کم وقت میں مسئلے کو حل کریں۔ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، سیاسی اختلافات کے باوجود صوبے کا امن، عوام کی خوشحالی ہماری ترجیحات ہیں۔ جرگے میں وزیر داخلہ محسن نقوی، ملولی، امیر مقام، صوبائی وزراء سمیت جماعت اسلامی کے صوبائی امیر اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترامیم کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، اسد کیسر اور عامر ڈوگر کو شرکت کی خصوصی دعوت۔ بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی اجلاس میں شرکت متوقع۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آئینی ترمیم کے ترمیمی مسودے پر اتفاق۔ نواز شریف کا تمام پارلیمانی جماعتوں کے اتفاق رائے پر زور۔ صدر نون لیگ سے چیئرمین پیپلز پارٹی کی پنجاب ہاؤس میں ملاقات۔ نواز شریف نے آئینی ترمیم کے لیے کردار پر بلاول بھٹو کو شاباش دی، سیاسی کردار کو سراہا۔ کہا، میثاق جمہوریت میں خواہش تھی تمام قوتیں مل کر پاکستان کو معاشی سیاسی استحکام دیں جس کے نتیجے میں ملک خوشحال ہو۔ سیاسی رواداری، اخلاق، آئین و قانون اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہم ایک ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا، میثاق جمہوریت کے تاریخی قدم کے سفر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سیاسی ویژن، سوچ اور تجربے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ ملک اور قوم کو آپ کے سیاسی تجربے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترامیم اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ ہماری کوشش ہے کہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے قائم ہو۔ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ہماری کوشش ہے خصوصی کمیٹی میں تمام معاملات رکھیں۔ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت 25 تاریخ کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے PTI سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو نااہل کرنے کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ موقف اپنایا کہ سیف اللہ ابڑو نے ٹیکس گوشواروں میں اصل زرعی آمدنی کو پوشیدہ رکھا، کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے پہلے غیر واضح رسیدیں جمع کروائیں۔ یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو آرٹیکل 63 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نااہلی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیف اللہ ابڑو اور سہیل سلطان کی نااہلی کے ریفرنسز 21 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔
14 अक्टूबर के बाद टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का ऐलान, कहा नॉन फाइलर के गाड़ी खरीदने और नॉर्मल बैंक अकाउंट रखने बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी होगी। 40 लाख घर ऐसे हैं जिनमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है। FBR के पास डाटा मौजूद है। इस साल हम इकदाम करेंगे। हम इसी साल ऑडिट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक बयानिया बनाया गया कि चंद फीसद लोग टैक्स देते हैं। टैक्स लायबिलिटी के लिहाज से अंडर फाइलिंग बड़ा मसला है। हुकूमत का 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान। 411 अरब की बचत, आवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली कीमतों में कमी लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आवाम को बिजली की कीमतों पर रिलीफ दिया। माजी में एक संगदिल वजीर आजम ने कहा महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था बिजली सस्ती करें क्योंकि ये आम आदमी का मसला है। बिजली चोरी को भी रोकना होगा। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। गुज़श्ता 7 माह में जो मुश्किलात पेश आई उनका बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करें। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली में ज़ाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की। मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हबको, रविश, लाल पीर, सबा और अटलस पावर प्लांट्स के मुआहदे मनसूख। IPPs में से रविश को ऑपरेट एंड ट्रांसफर मुआहदे के तहत कायम किया गया था। मुआहदे की रूह से इसकी मलकियत हुकूमत को मुंतकिल करने के बाद उसकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए निजकारी की जाएगी। बाकी मानदा 4 IPPs की मलकियत उनके मालिकान के पास रहेगी। मुआहदे खत्म करने के बाद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। दीगर IPPs से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम किया जाएगा। वजीर तवन्नाई अवैस लगारी कहते हैं बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली कंपनियों से मुशावरत करके कीमतों में कमी लाएंगे। अब बाकी IPPs के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट्स अभी अदा करेंगे, मुस्तकबिल में अदा नहीं करेंगे। हुकूमत का फैसला था बिजली की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर न हो। जिरगे में अहम कौमी नोयत के निकात पर तमाम जमातों में इत्तेफाक हो गया। PTI क़याम अमन की कोशिशों में सफ़े अव्वल में नजर आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं जिरगे में इत्तेफाक हुआ। आइंदा एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी मुल्की इदारे के खिलाफ नारा नहीं लगेगा। कौमी परचम के तकद्दुस और आइन के एहतराम की तमाम जमातें पाबंदी करेंगी। तमाम सियासी जमातें क़याम अमन के लिए इख्तिलाफ पसे पुश डालकर काम करेंगी। सब मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर सब्ज हलाली परचम ही सरबलंद होगा। हुकूमत हर हाल में आईनी तरमीम लेकर आएगी। आईनी अदालत से मुतल्लिक तरमीम 2008 से करना चाह रहे थे मगर ना हो सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भरपूर ख्वाहिश है मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हों। आईनी तरमीम के मामले पर PTI की एहतजाजी कॉल नाकाम हो चुकी। SCO को आईनी अदालत के मामले से लिंक करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं मालूम आईनी तरमीम कब पेश होंगी। मोहसिन नकवी फंस गए तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। अली अमीन गंडापुर इनको माफ कर देंगे मगर हम मोहसिन नकवी को माफ नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डी चौक एहतजाज के दौरान मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IG को सरबराह रास्त ऑर्डर दिए, इसलिए गुज़श्ता रोज IG से इख्तियारात वापस ले लिए। वजीर दाखिला इन खानदानों से माफी मांगे, इनके अहकामात पर हमारे लीडर्स जेल में हैं। हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनकी मर्जी के बगैर कोई जज आ सके। मुजवजा आईनी तरमीम के लिए गैर कानूनी हथकंडे के इस्तेमाल करके लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। साबिक वजीर मोहम्मद जुबैर ने मुल्की सियासी तारीख में अक्टूबर का महीना बहुत अहम करार दे दिया। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत कहती है शफाफ तरीके से जीत कर आए हैं तो इलेक्शन का ऑडिट करा ले। डर किस चीज का है? फॉर्म 45 के तहत नताइज का ऐलान कर दें, सच सामने आ जाएगा। हुकूमत हिम्मत तो करे ताकि PTI का तो मुंह बंद किया जा सके। सदर मुमलिकत से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। दो तरफा तिजारत, मईशत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मईशत, ज़राअत, कानकनी और शोबा IT में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ से भी सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने वफ्द को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और अज़्म की मजीद यकीन दहानी कराई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत रखते हैं।
पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं। हम दोस्त नहीं एक खानदान हैं। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने कहा सऊदी अरब में सरमायाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत, हमारी मईशत और माशी इकदार एक साथ जुड़ी हैं। पाकिस्तान और सऊदीया को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। हम एक हैं। मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के खित्तों में तरक्की के वसी इम्कानात हैं। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत में नुमायां इजाफा हुआ है। तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। पाक सऊदीया तिजारती हुजम में इजाफा बढ़ती इक्तसादी शराकतदारी का मुंह बोलता सबूत है। आर्टिकल 63A में ये नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डी-सीट हो जाएगा। ये भी नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, आइन के आर्टिकल 63A और उसकी तमाम ज़ैली शिक्के इंतहाई वाज़ेह हैं। किसी तशरीह की जरूरत ही नहीं। जल्दबाजी में नजरसानी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर करने का एतराज बेबुनियाद। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में नजरसानी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर ही ना की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कभी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को याद नहीं करवाया। सदारती रेफरेंस आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट भेजा था। काबीना से मंजूरी या वजीर आजम की एडवाइस का कोई हवाला नहीं दिया गया। आइन में कहा है कि तरमीम का मुसविदा पब्लिक किया जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। पेशावर हाई कोर्ट ने मुजवजा आइनी तरमीम का मुसविदा पब्लिक करने के लिए दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी करते हुए 15 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने करार दिया कि ऐसी नौयत के और केसेस भी हैं, उसके साथ इनको भी सुनेंगे। हो सकता है इन केसेस के लिए हम लार्जर बेंच भी तश्कील दे दें। कादियानियों का खुद को मुसलमान या अहमदी मुसलमान कहलाना दुरुस्त नहीं। कादियानियों पर लाजिम है कि वो आइन में तयशुदा अपनी आइनी हैसियत को तस्लीम करें। उसके दायराकार में रहते हुए उनके हकूक़ का ताजुन और तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुसलमान वो हैं जो खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान रखते हैं। मुबारक अहमद सानी केस में मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ करने का तफसीली फैसला जारी। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में लिखा, तस्हीह शुदा फैसले के बाद 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले वापस लिए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट गुज़श्ता फैसलों से मुतासिर हुए बगैर जमानत केस का ट्रायल चलाए।